The topic of today's session is Make Every Day Count in Life. And for this topic, we have with us today Nitin. Welcome, sir. But before his conversation, let me introduce Mr. Nitin Bakshi. He's a motivational speaker and trainer for personal and professional development. He is also a director of the First Step. It's an institute for personal and professional development. He's also writing in the newspaper Hitwaad for the last 15 years. Bakshi's Divine World is his YouTube channel. He has also published a few books, one of which is The Unfolding Secrets of Smart Study, and it is being sold on Amazon. So without much time, let us start this session, sir. Mr. Nitin Bakshi, over to you, sir. Okay, thank you, madam. Good morning, students. Well, I'm very happy today. First of all, let me know if I'm audible. Yes. 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 So fine. Okay, then it's okay. Well, I'm very happy today. I'm admitting it. That is because whenever you get a chance to interact with college students, it's always a pleasure. That is because you all are in between the age of 18 to 25 or 18 to 25. I think that should be the right. Well, the energy level of college students is always very high. The atmosphere is always electrifying, and it's positive mood all the while. Well, but first of all, I must thank the management of the college, the principal madam, principal sir, well, and the team, organizing team, in fact, of Shivaji College for having come up with such innovative thing. It is because I have never heard of this thing in any college whatsoever as a value-based innovation at the start of the academic year. It's something very, very new, very, very innovative, and I congratulate the management and the organizing staff for this. Well, students, let us begin our session. But before beginning the session, I must tell you one thing. Any training session, you must have undergone several training sessions. Well, the thing is that any training session has three facets. The first one is learning, the second one is relearning, and the third one is unlearning. Had it been a face-to-face or one-to-one session, I would have asked you these questions, but in Zoom, it takes a lot of time, in fact, to get your answers. So I won't dwell upon these things too much. Well, I told you that there are three aspects to any training session. The first one being learning. Learning is what? Well, friends, before sorry starting... to disturb you. Yes? We can have a mixed conversation in English and Marathi. Sure, madam. If you don't mind, of course. No, not at all. Not at all. Okay. Not at all. Yes. जैसा कि अभी मैडम ने बताया है कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी ये तीनों में हम लोग कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे. मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि व्हाटएवर कम्स नेचुरली वो नेचुरली आए. मराठी तो मराठी, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश. अब कोई भी ट्रेनिंग सेशन में तीन फैसेट्स रहते हैं दोस्तों. एक तो लर्निंग, दूसरा रीलर्निंग और तीसरा अनलर्निंग. लर्निंग एकदम सिंपल है. आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए, उसमें आपको एटलीस्ट 1%, 2%, 5% कुछ तो भी नया मिलेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो ट्रेनर है वो पूरा का पूरा वही बताएगा जो आपको मालूम है. सो एटलीस्ट यू गेट टू लर्न 5%. तो लर्निंग एस्पेक्ट इस तरह का है. व्हाट अबाउट रीलर्निंग? रीलर्निंग में ऐसी चीजें रहती हैं कि जिसमें हम बहुत सारी चीजें हमको मालूम है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उनको भूल चुके हैं. अब भूल चुके हैं तो नेचुरली क्या होता है कि ऐसे ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो चीजें हमको याद आ जाती है. दैट इज कॉल्ड रीलर्निंग. ये मैंने बताया आपको कि अगर फेस टू फेस अगर सेशन रहता तो मैं आपको 100% अनलर्निंग क्या है ये पूछता. अनलर्निंग इज वन सच वंडरफुल एस्पेक्ट. अनलर्निंग का मतलब ये है दोस्तों कि आज तक आपको जितनी भी चीजें मालूम है वो सब के सब सही है, ऐसी बात नहीं है. तो फिर उसमें क्या है, जितनी चीजें सही नहीं है वो चीजें आपको समझनी चाहिए.
और ऐसा ट्रेनिंग सेशन आपको मिलते हैं कि जिसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है कि जिससे आपको मालूम पड़ता है कि आपको अर्लियर जो चीजें मालूम थी वो सही नहीं थी। अब जो चीजें सही नहीं थी वो छोड़ देना और नई चीजें एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड अनलर्निंग। जैसे हमको हमारे घर में कोई सोफा लेना है, कोई पलंग लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराना सोफा जब तक हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते हैं तब तक हम लोग नया सोफा ले नहीं सकते। तो इसी को हम लोग अनलर्निंग कहते हैं। तो अभी पुरानी जो आपका नॉलेज है या पुरानी जो चीजें हैं कि जो अभी गलत होने वाली है, जो ये सेशन के बाद में आपको लगेगी कि गलत है, तो उसे आप छोड़ देंगे और इस सेशन में आपको जो नई नई चीजें मिलेंगी वो चीजें आप ग्रास्प करेंगे और उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज कॉल्ड अनलर्निंग। तो दोस्तों कोई भी ट्रेनिंग सेशन में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लर्निंग, रीलर्निंग एंड अनलर्निंग। ओके, वन मोर थिंग, आपके पास में अगर कोई पेन पेंसिल या नोटबुक नहीं है तो प्लीज रख लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस होने वाली है, ये सब के सब चीजें आपको याद नहीं रह सकती। I must make one thing very clear to you that your mind can retain 100% information only during first 3 days। पहले 3 दिन ही आपको ये याद रहने वाली है, जो मैं अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बातें। चौथे दिन के बाद में अगर आपको मैंने या किसी और ने भी पूछा कि आपका जो सेशन हुआ उसमें क्या बातें हुई, तो आपको फोर्थ डे से अनलेस एंड अनटिल इट इज रिवाइज्ड, आपने किसी के साथ में बात किया है तो बात और है, वरना अदरवाइज फोर्थ डे ऑनवर्ड्स आप वो सब चीजें भूल जाएंगे। तो बेटर ये है कि आपके पास में अगर पेन पेंसिल है तो प्लीज अपने पास में रखिए, और जितना आपको इसमें से इंपॉर्टेंट मिलता है वो प्लीज आप ले लीजिए, ठीक है। ओके, विल स्टार्ट। अभी मैडम ने जैसा बताया कि नया ईयर जो आपका स्टार्ट हुआ है वो इतने अच्छे सेशन के साथ में स्टार्ट हुआ है। रियली आई कांग्रेचुलेट द मैनेजमेंट इनफैक्ट। अब एक सिंपल सवाल, आपको बहुत सारे ईयर्स आपको मालूम है, जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर, देन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, देन योर नॉर्मल बर्थ ईयर जिसमें हमारी उम्र बढ़ती है, और चौथा है तुम्हारे स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक ईयर, जो अभी आपका स्टार्ट हुआ। अब ये एकेडमिक ईयर का शुरुआत जो है, उसका स्टार्ट जो है, यू आर स्टार्टिंग इट इन दिस वे, ये वेरी क्रेडिटेबल। अब एक बात आपको पूछना है कि ये नया साल जब भी आपका स्टार्ट होता है तो हाउ टू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर, कैसे सेलिब्रेट करते हो? या फिर मैं थोड़ा सा सेलिब्रेशन से पहले आपको एज ए स्टूडेंट एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। सवाल ये है, एकदम नॉर्मल छोटा सा सवाल है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? नेचुरली आप कहोगे कि 365, 366 डिपेंडिंग ऑन लीप ईयर और अदरवाइज। लेकिन देखिए 365 और 366 ये बहुत ही नॉर्मल सवाल, नॉर्मल जवाब हुआ राजा। एक स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लॉजिकल जवाब दीजिए। लॉजिकल जवाब ये है कि इन 365 डेज में से, एक एकेडमिक ईयर के हिसाब करके हम लोग, इसमें से जितने दिन आप कोई वर्थवाइल बात करते हो, सिर्फ उतने ही दिन आपके हिसाब से उस साल में। बाकी जिस दिन आप कुछ नहीं करते हो, आप कोई स्टडी नहीं करते हो, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करते हो, तो यूं समझ लीजिए कि उतने दिन उस एकेडमिक ईयर में नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? एक एकेडमिक ईयर में उतने ही दिन होते हैं एक स्टूडेंट के लिए जितने दिन वो स्टूडेंट काम करता है, जितने दिन वो पढ़ाई करता है। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट। हो सकता है कि किसी किसी स्टूडेंट की वजह सिर्फ 100 दिन ही अगर आप काम करते हो, तो 265 days आर नॉट एट ऑल देयर इन दैट पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ये बात आप क्लियर समझ लो। अब दूसरी बात, किस तरह से हम नया साल सेलिब्रेट करते हैं? 31 जन की तो बात आपको मालूम, सॉरी 31 दिसंबर की बात सबको मालूम है। 1 जन को हम लोग अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, या फिर आपका बर्थडे रहा तब भी आप बहुत सुंदर सेलिब्रेट करते हैं। अब एकेडमिक ईयर और फाइनेंशियल ईयर का आपसे कोई ज्यादा संबंध नहीं रहता, एकेडमिक ईयर को कोई सेलिब्रेशन नहीं रहता। अब रही बात आपके बर्थ ईयर की, पकड़ते हैं, जब भी आपकी उम्र बढ़ती है बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, राइट, आपके बर्थडे पे। अब मुझे एक बात बताइए कि ये सेलिब्रेशन जरूरी है या नहीं, ये बात नहीं करेंगे हम लोग ये करेंगे कि ये सेलिब्रेशन करना चाहिए या नहीं, या फिर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए। अब देखिए, आपकी उम्र अभी
समझो 20 साल की है, 20 आपका 20th बर्थडे अभी हो गया, 21st में आपने अभी एंटर किया है। अब ये जो नया साल चालू हो गया, इसका बहुत अच्छा होटल में जाके हमने सेलिब्रेट कर लिया। अब सेलिब्रेट करने से पहले एक सवाल सिर्फ अपने आप को पूछिए, जो ईयर लास्ट मेरा गया है उस ईयर को मैंने क्या दिया? एक बस इतना सा छोटा सा सवाल, इस ईयर में मैंने क्या वर्थवाइल किया है? अगर आपने कुछ भी वर्थवाइल किया है तो ही आपको यह नया ईयर सेलिब्रेट करने का अधिकार है, मॉरल राइट है, अदरवाइज नहीं है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, आप दो कैपेसिटी में काम करते हो, नंबर 1 इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और दूसरा एक स्टूडेंट करके काम। अब एक बात मैं पूछता हूं आपको, मैं कुछ कुछ सवाल देता हूं, आप ये सवाल खुद को पूछिए और उसके बाद में ये नया साल, ये बर्थडे बोलिए या फिर ये 1 जनवरी, जो नया साल जो हमारे लाइफ में आता है, उसी तरह ये एकेडमिक ईयर भी उसी तरह की बात है, ये हमारे लाइफ में सेलिब्रेशन करने के लिए योग्य है क्या? ये आप अपने आप से सवाल कीजिए। कैसे? देखिए, एक सिंपल बात, मैडम ने अभी बोला कि ये पेंडेमिक चालू है हमारा, 4 महीने से हम लोग बैठे हैं, ठीक है। अब 4 महीने से एज अ स्टूडेंट आप बैठिए, मेरे एक दो सवालों का जवाब दीजिए, एक दो नहीं, मैं आपको ढेरों सवाल बताता हूं। पहला, आप सुबह कितने बजे उठते हो? एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? जब आपकी कॉलेज चालू थी तब अगर आप 7 बजे उठते हो तो अभी कितने बजे उठ रहे हैं? अभी कोई कॉलेज नहीं चालू है तो नेचुरली 8 बजे उठते हो क्या? 9 बजे उठते हो क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या हम हमारा दिन थोड़ा जल्दी नहीं स्टार्ट कर सकते? 6 बजे, 5 बजे? ऐसा कोई पॉजिटिव काम किया है कि आपने ये 4 महीने में? ओके, नेक्स्ट, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो? जिम में जाना मना है, फाइन, घर में एक्सरसाइज करना मना है क्या? नहीं, फिर कैसा? और एक बार, मॉर्निंग इवनिंग वॉक बंद हो चुकी है, घर में कुछ करते हो क्या? बहुत सारे लड़के या लड़कियां हैं कि जिनको कम एज में जिनका वेट बढ़ चुका है, वेट कम करने के लिए आर वी डूइंग समथिंग? आर वी डूइंग समथिंग वर्थ वाइल? और उससे क्या हमारा कोई वेट कम हुआ है? और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं ये 4 महीने के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एक्चुअली एवरी ईयर यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपने कौन से नए दोस्तों से मैत्री किया है, कौन से नए दोस्तों से फ्रेंडशिप किया है, मुझे बताइए। आपका इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट बता रहा हूं, ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों वो आपको नोट करने के हैं, तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका मानसिक विकास होने के लिए, आपका वैयक्तिक विकास, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होने के लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी है? दीज डेज आई डोंट थिंक यू आर रीडिंग हार्ड कवर बुक्स। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बुक्स ही पढ़ते हैं। अब क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, हार्ड कवर नहीं तो हार्ड कवर नहीं, लेकिन ऑनलाइन कौन सी किताबें पढ़ी है, कितनी किताबें पढ़ी है दोस्तों? और एक बात इंपॉर्टेंट ये रहती है कि हमारे दोस्त या फिर उनके साथ ही आप दोस्ती करो कि जो पॉजिटिव थॉट्स आपके साथ में रहते हैं, जिनकी पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ में मिलती है। तो ऐसे कितने दोस्त आपके हो गए हैं 1 साल में कि जिनके साथ में आपकी बहुत अच्छी जमती है? नई नई किताबें पढ़ने से आपके विचारों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये देखिए। 7 8 10 सवाल हो गए मेरे, इन सवालों के क्या जवाब है हमारे पास में? ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे लिए सवाल है दोस्तों। सुबह उठने का तो मैं आपको मालूम है कि जैसे ही हम सुबह डिसाइड करते हैं कि सुबह 5 बजे हमको उठना है, तो सुबह सबसे ज्यादा ठंडी हमको 5 बजे ही बचती है। तो जैसे ही हम लोग हमारा ब्लैंकेट निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड तुरंत हमको बोलता है कि यार ये कोई समय है उठने का, बाद में देखेंगे, इतनी ज्यादा ठंडी, ये कोई समय नहीं है, बाद में उठते हैं। तो ये सब जो चीजें, दैट इज बिकॉज देयर इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। आप जब भी कोई समय वेस्ट करोगे, जब भी कोई टाइम वेस्ट करोगे, आपका माइंड जो है वो आपको प्रॉम्प्ट करता है, आपको सपोर्ट करता है। आप अगर समझो स्टडीज करने की, आपको पढ़ाई के लिए बैठे हो, 1 घंटा हो गया तो वो बोलता है यार बहुत हो गया ना, आप कितना पढ़ोगे? कि पूरे साल भर की पढ़ाई क्या अभी कर लोगे?
आराम से करते हैं, वो बोलते हैं चलो थोड़ा सा एक बाहर चक्कर मार के आते हैं। इस तरह से बातें होती है। दूसरा, इसके अगेंस्ट में जब भी आपको रेस्ट करना है, इट विल प्रॉम्प्ट यू। अच्छी चीजें करना है, आपका माइंड नेवर सपोर्ट्स यू। अगर देखिए पिक्चर देखना है, वो बोलता है चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको इंपॉर्टेंट काम घर में छोड़ के भी पिक्चर देखने जा सकते। क्रिकेट की मैच देखना है, लेट अस टॉक अबाउट 2020, 3 घंटे का मैच है। ये 3 घंटे में आपका माइंड आपको एक बार भी याद नहीं आने देता कि कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग पड़ा। तो इसलिए दोस्तों आपका काम ये है, आपके लिए जरूरी ये है कि पहले ये सोचो कि इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने क्या करने को होना, ये मैंने बताया। लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। अब देखिए, ये सवाल मैं आपको एज ए स्टूडेंट एंड एज ए यंगस्टर बता रहा हूं, प्लीज नोट देम डाउन। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब भी आपको नया साल सेलिब्रेट करने का समय आएगा, तो पहले ये सवाल अपने आप से पूछना, इसका जवाब लेना, और उसके बाद ही नया साल सेलिब्रेट करना। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट मैंने अपने आप में कौन से चेंजेस लाए हैं, ये मुझे बताइए। लास्ट ईयर सपोज यू वेर इन बीएससी पार्ट 1, अभी इस वक्त बीएससी पार्ट 2 में हूं। बीएससी पार्ट 1 में एज अ स्टूडेंट मैंने अपने आप में कौन से चेंजेस लाए। वो जो पहला हमारा एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो हमने बोला था कि हम, क्या मैं 5 बजे उठता हूं, क्या मैं 4 बजे उठता हूं, ये भी इसी के लिए लागू है। दूसरा, हैव आई प्रिपेयर्ड एनी टाइम टेबल, कोई भी टाइम टेबल मैंने मेरे स्टडीज के लिए बनाया है? अपने आप से सवाल कीजिए, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। जवाब भी आपको ही देना है, कोई नोबडी इज गोइंग टू गिव द आंसर्स ऑन योर बिहाफ। ठीक है। दूसरा, ये साल के लिए जो टाइम टेबल मैंने बनाया था उसका मैंने यूज किया क्या, किया क्या? हैव आई सेट एनी पर्सनल टारगेट्स फॉर मी एज अ स्टूडेंट? मुझे ये रैंक में आना है, टॉप 5 में आना है, या फिर मेरा परसेंटेज जो है वो 90 से ऊपर चाहिए, 85 से ऊपर चाहिए, ऐसा कोई टारगेट मैंने बनाया है अपने लिए? दोस्तों, इसके जवाब आपको ढूंढना है और किसी को नहीं। हैव आई प्रिपेयर्ड एनी प्लान? अगर मैंने ऐसे टारगेट बनाए थे तो उसका प्लानिंग कुछ बनाया है कि मैंने? नहीं। एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जवाब आपको देना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में डिस्कस करना है। आपकी जनरेशन के साथ में 18 to 25 वाला जो जनरेशन है उसके साथ में बताता हूँ, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, ये तीन के साथ में, ये तीन जो गैजेट्स है इन्होंने बहुत ही खराब कर दिया है। एक्चुअली दीज 3 गैजेट्स आर द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशंस, कोई डाउट नहीं इसमें। दोस्तों, आपने कभी भी ये सोच के देखा है कि आप इतना समय टीवी देखने में गंवाते हो? मैं गंवाते ही हूं, ऐसे ही बोलूंगा। इतना समय गंवाने के बाद में ये थोड़ा पूछो कि तुमने क्या पाया है, क्या अर्न किया है, क्या सीखा है? अब एक बात आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूं, आप में से, और एक सब्जेक्ट पे हम लोग छोटा सा बात, एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं आगे, कि जो लोग अपने दिमाग से काम लेते हैं, जिनको आगे अच्छा एंटरप्रेन्योर करके काम करना है, जिनको आगे अपना बिजनेस सेटअप करना है, मार्केटिंग करना है बहुत सारी चीजों का, तो मार्केटिंग इज अ वंडरफुल थिंग। अब आप देखिए टीवी पर जितनी भी एड आती है, कौन सी एड आती है? साड़ीज की एड आती है, टीवी फोटो की एड आती है, कार की एड आती है, तुम्हारे मोबाइल्स की एड आती है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, मोबाइल्स, साड़ीज, उसके बाद में गॉगल्स की एड आती है, कपड़ों की एड आती है, ये सब जो एड है, ये एड में एक चीज कॉमन रहती है। देखिए, गॉगल, सॉरी, अपने आप ले लीजिए कि तुम्हारा कार की ले लीजिए। अब कार में आपको टाटास की गाड़ियां दिखती है कि नहीं? बहुत सारी हुंडई की गाड़ी दिखती है, होंडा सिटी की गाड़ी दिखती है। इन सब एडवर्टीजमेंट में मुझे आप एक बार बीएमडब्ल्यू का एड बता दीजिए। घड़ियों का, रिस्ट वॉच का जो एड है, टाइटन वगैरह का, सब जितने भी कंपनियां हैं हमारे, उन सब के एड उसमें मिल जाएंगे, और हम सब लोग बड़ी चाव से देखते हैं उसको। इन सब एडवर्टाइजमेंट में एक बार मुझे टैग ह्यूबर
या रोलेक्स कंपनी का ऐड बता दीजिए मुझे टीवी पर, क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? मर्सिडीज बेंज कार के ऐड मुझे बता दीजिए, वो इसलिए नहीं रहता दोस्तों। ये आपने ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों को मालूम है कि रोलेक्स, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये पहनने वाला आदमी या ये यूज करने वाले आदमी के पास में टीवी देखने के लिए फुर्सत नहीं है। टीवी देखने वाले लोग 101% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ही रहते हैं, और उनके हिसाब से ही उस पर एडवर्टीजमेंट की चीज है। वरना आप एक बार मुझे रोलेक्स का एड वहां बता दीजिए, रोलेक्स पहनने वाले को टीवी देखने का बिल्कुल समय। या फिर आप अपने फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, एक फिल्म स्टार्स को पूछिए कि आप टीवी देखते हो। दोस्तों, जिनको टीवी पर आना है वो टीवी नहीं देखते। अब हमको टीवी देखना है, आना नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? बस टीवी देखते बैठते हैं और कुछ नहीं करते। मोबाइल, इतना मोबाइल खेलते हो, इतना मोबाइल खेलते हो, कुछ लिमिट ही नहीं बची। गेम्स, यूट्यूब, फेसबुक, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम एट ऑल, देखिए ना, लेकिन देयर शुड बी सम लिमिट। सभी लिमिट क्रॉस कर गए हो। मोबाइल पे इतना गेमिंग, इतना गेमिंग, इतना गेम खेलते हो, लेकिन कभी आपको ये नहीं लगता कि गेम खेलने के बजाय कोई गेम बनाए? किसी ने रोका है आपको? यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो, इतने सारे वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट। अब आपकी उम्र तो 18 से 25 के बीच में है, 18 to 25। हैव यू सीन द वीडियोस ऑफ तन्मय बख्शी? तन्मय बख्शी 14-year-old बॉय, 14 साल का बच्चा है, और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वीडियोस है, दे आर इन डिमांड बाय मिलियंस। मिलियंस फॉलोअर है उसके। 14 साल का बच्चा, इज नॉट इवन मैट्रिकुलेशन नहीं हुआ है उसका। अब मुझे बताइए, इस तरह के वीडियोस हम क्यों नहीं बनाते? क्या दूसरों के वीडियो देख देख के क्या मिलने वाला? वी आर गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और ये यूथ जो है, आपकी जनरेशन जो है, आप तो प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकते। और पर्टिकुलरली ये जो 3 चीजें मैंने बताई, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, इसका अपने हिसाब से यूज कर लीजिए ना। टीवी पर आप क्या कोई सीरियल बना रहे हो? आप किसी सीरियल को डायरेक्ट कर रहे हो? किसी सीरियल के लिए डायलॉग लिख रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ वॉचिंग टीवी? दोस्तों, 2020 का मैच 3 घंटे चलता है। 3 घंटे के मैच होने के बाद में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। यूट्यूब पर आप वीडियो डालते हो क्या? नहीं। फिर दूसरों की वीडियो क्या देखते हो? सीखो उनसे, क्या सीखना है। सीखने के बारे में अभी चल रहा है, पॉइंट करके मैं बताता हूं। आप साइंस सीखते हो, कॉमर्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, लेकिन पढ़ने का एक तरीका रहता है कि जितना आपको आइंस्टाइन, एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो इन्वेंशंस है, इनके बारे में मालूम है, उतना ही क्या आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मालूम है, एडिसन के बारे में मालूम है? डिटेलिंग। जैसे पेनिसिलिन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, दैट इज फाइन, लेकिन फ्लेमिंग ने, आपको बस पेनिसिलिन मालूम है, पेनिसिलिन के डिटेल्स मालूम है, लेकिन वो किस तरह से किया है, किस सिचुएशन में किया है, वो दैट इज मोर मोटिवेटिंग, वो जानिए। अब न्यूटन के लॉ तो हमने पूरे रट लिए हैं, बराबर है, लेकिन न्यूटन के लाइफ में रिजोल्यूटनेस क्या था, वो किस तरह से उसने इतनी सारी चीजें किया है, वो नहीं जान पाए हम लोग। रोमियो जूलियट आप पढ़ते हो, तो रोमियो जूलियट के साथ में शेक्सपियर की क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ोगे, एडिसन के बारे में भी पढ़ोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी पढ़ोगे, तो किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन में से आगे जाना, ये भी आप सीखो। ओनली पेनिसिलिन इज नॉट एवरीथिंग, ओनली रोमियो जूलियट इज नॉट एवरीथिंग। पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, ठीक है। लास्ट ईयर जो भी मार्क्स मिले हैं, अच्छे नहीं मिले हैं। ये साल मैंने मुझसे ज्यादा अच्छे मार्क्स जिन लोगों को मिले हैं, जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं, हैव आई टॉक टू देम? क्या मैंने उनके साथ में बात किया है? वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में मैंने सोचा है। लास्ट ईयर तो गया, अब मार्क्स कम मिले हैं तो मिले हैं। नाउ यू कांट अनडू एनीथिंग। जो मिले हैं, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंगस्टर्स हो आप में से बहुत से लोग, कोई बीएससी फाइनल को है, बीकॉम फाइनल है, बीए फाइनल,
MCOM MA फाइनल उसी तरह से। तो मतलब कॉलेज का लाइफ खत्म होने में है हमारा। एज ए यंगस्टर हमको कॉलेज से बाहर पांव रखना है। क्या प्लान है हमारे, क्या सोचा है? व्हाट डू थिंक अबाउट द करियर? करियर के बारे में जरा भी सोचा है हमने? अगर नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा? क्या हमारे एप्टीट्यूड्स है, क्या हमको पसंद है, क्या नहीं है, ये कब सोचेंगे हम? बस दिस इज द राइट टाइम फ्रेंड्स। लेकिन ये जो सालों पे साल हम लोग वेस्ट करते जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट। कुछ नहीं मिलने वाला उससे। कुछ अच्छे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हैं क्या? हमारे अपने आप में कोई डेवलपमेंट्स करना है क्या? अब जैसे अभी मैडम ने बताया कि सभी लैंग्वेजेस, कोई भी एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस प्लीज मत। इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तीनों लैंग्वेजेस आपको फ्लुएंटली आनी ही चाहिए। नहीं आती है इंग्लिश तो सीखो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा करियर चूज करना है तो उस करियर में जिस किसी ने भी अच्छा काम किया है, क्या हम उससे मिले हैं? ऐसे कोई व्यक्ति से मिले हैं कि जिन्होंने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है? अब जैसे आप चाहते हो कि मैं साइंटिस्ट बनूं, तो क्या आप किसी साइंटिस्ट से मिले हो? अब नहीं मिले हो तो मिलो ना। जब तक आप किसी से नहीं मिलोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये बोलने में मीनिंग नहीं है ना कि मुझे आईएएस करना है। ओके फाइन बॉस, लेकिन आईएएस कोई खाने की चीज तो है नहीं। जो आजकल तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ फिफ्थ से पेरेंट्स बताना चालू कर दिए कि बस आईएएस बनना है, आईएएस बनना है या साइंटिस्ट बनना है। अरे भाई, साइंटिस्ट बनना है या आईएएस बनना है, ये कुछ खाने की चीज तो है नहीं दोस्तों। वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिटेल में प्लानिंग लगता है। अब फिर क्या करेंगे हम? वेल, इतने सारे सवाल आपको बताए, इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताए, आई होप यू मस्ट हैव नोटेड देम। अब आगे की बात ऐसी है कि क्या करना है ये आपको बताया है, अब कैसे करना है ये भी तो बताना जरूरी है। अब क्या करना है ये मैं आपको, कैसे करना है ये आपको बता दें। सबसे पहली बात, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एक्सक्यूज देना बंद करो। मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया, इस वजह से ये नहीं कर पाया, ये आपके पास में हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस आते हैं और इस वजह से ही हम लोग अच्छी अच्छी चीजें नहीं कर पाते। एक बात आप ध्यान में रखो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास में पैसे नहीं है, हमको और कुछ प्रॉब्लम्स है, या सपोर्ट नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, ये हजारों रीजन है, ये देना बंद करो। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि दुनिया में, भारत में ही ले लो हमारे, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोगों ने इतने बड़े बड़े काम करके रखे हैं कि हम उनके बारे में कुछ ना बात करें तो ही अच्छा है। क्यों? उनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे, तब भी वो, क्या हम कभी हमारे रेलवे स्टेशन पे जाके पेपर बेच रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे जाके हम लोग पेपर बेच नहीं सकते तो हम इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। अब ये हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या हम मंदिरों मस्जिदों में रहे हैं? मंदिरों मस्जिदों में अपनी लाइफ के 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल निकालने वाला व्यक्ति, he has become the world famous musician of India। मैं AR रहमान की बात कर रहा हूँ, जिसका पूरा बचपन जो है वो मस्जिद में गुजरा है। कितने लोगों के बारे में बताएं? अब बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में, स्टीव जॉब वगैरह के बारे में तो अब सब लोग आप सुन चुके हैं कि जिनको सुबह एक वक्त का खाना मिलता था, बाकी अदरवाइज कुछ मिलता नहीं था। द ओनली थिंग इज दैट दे वर पैशनेट। तो इसलिए दोस्तों, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ऑस्कर पिस्टोरियस के बारे में, साउथ अफ्रीकन रनर है कि जिसको दोनों पांव नहीं है। अब दोनों पांव जिसको नहीं है, वी कॉल हिम ब्लेड रनर। ये व्यक्ति ओलंपिक में सेमीफाइनल तक जाता है। अब मुझे बताइए, एक्सक्यूज ऑस्कर पिस्टोरियस ने देना है या हमने देना है? जिसको दोनों पांव नहीं है वो कोई एक्सक्यूज देता नहीं है और वो ओलंपिक में दौड़ता है, और यहां पर सब कुछ है फिर भी हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। और ये शिवाजी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज के तो एक दो व्यक्तियों को मैं ऐसा जानता हूं कि जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। मैं एक लड़की के नाम नहीं लूंगा, एक लड़की है हमारी की जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, येट शी इज अ वेल नोन फिगर ऑफ अकोला। बहुत बड़ी फिगर है अकोला की अभी वो। और उसकी तरफ देख के आप कभी उससे बात कीजिए तो यू विल इमीडिएटली कम टू नो कि शी इज टू ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। और उसके अगेंस्ट में उसको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है।
जेन्युइन प्रॉब्लम रहने वाली लड़की कोई एक्सक्यूज नहीं देती है एंड वो बहुत बड़ा काम कर रही है कला में। आपके कॉलेज के प्रोफेसर ही ले लो, विशाल कोरडे, वो हैपेंस टू बी माय वेरी गुड फ्रेंड। वो भी आप सभी जानते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए कितना बड़ा काम करते हैं। सो देयर इज नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास में हाथ पांव और भगवान ने अगर दिमाग दिया है तो ये सब कुछ तो है, फिर क्यों हम एक्सक्यूज दे रहे हैं? इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि एट द स्टार्ट ऑफ अ करियर देयर शुड बी सम स्पेसिफिक गोल्स। आपके गोल्स जो है वो किसी भी ईयर के स्टार्ट में रेडी चाहिए। ऐसा ये एकेडमिक ईयर है, अब एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में आपके गोल्स रेडी चाहिए। आपको रैंक अपना इंप्रूव करना है, आपको परसेंटेज आपका इंप्रूव करना है, आपको आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, आपको आपके लैंग्वेजेस ठीक करना है, जो भी करना है एकदम कर। और लेकिन गोल्स के बारे में एक बात ध्यान लीजिए, इट शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब मुझे टॉप 5 में आना है, ऐसा गोल चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलाना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छे मार्क्स, सॉरी, स्पेसिफिक चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताता हूं आपको, किसी का वेट अगर ज्यादा है तो आप अपना इस तरह का बात कीजिए कि मुझे 2 महीने के अंदर 5 किलो वेट कम करना है। मुझे वेट कम करना है वाला काम नहीं चाहिए, 5 किलो 10 किलो जो भी आपका टारगेट है, लेकिन द टारगेट शुड बी स्पेसिफिक। क्लियर? दूसरा, स्पेसिफिक टारगेट नहीं रहे तो आप उसके पीछे जा नहीं सकते हो। अब इसी तरह से एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, मैंने आपको ऑलरेडी आपके टारगेट बता दिए हैं दोस्तों। ये बात ध्यान में रखिए, जो आपने आई होप कि नोट कर लिए होंगे वो सब बाद में आपको टारगेट करके कन्वर्ट करना है। ये जो आप टारगेट्स बनाओगे, ये जो गोल्स बनाओगे, द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गेट देम इन द राइट। उस प्लीज एक अच्छे से पेपर पे लिखिए, एक पेपर पे लिखिए आपको। और फिर ये सबको मालूम है कि पेपर्स पे लिखने से एक हो जाता है कि वो जो गोल्स है वो हमारे माइंड में थोड़े सेट हो जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड है एंड सबकॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड का किस तरह से काम होगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक बार आपके माइंड में गोल सेट हो गए, अब आपको क्या करना है कि वो जो आपने पेपर पे लिखे हैं अपने गोल्स, वो आप आपके घर में ऐसी जगह पर लगाओगे कि जो आपको बार बार दिखते हैं। अब इसके आगे वो क्यों लगाना है, वो आपके लिए नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको डिटेलिंग उसका करने वाला हूं। वो गोल आप ऐसे जगह पर लगाओगे कि जहां पर आप बार बार जाते हो। उससे क्या होता है कि बार बार आप वो गोल देखते रहोगे। अब जैसे ही आप वो गोल देखोगे याद आते रहेगा, और बार बार जब भी आप कोई चीज देखते हो तो फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जाना चालू हो गया तो क्या हो जाता है, मुझे ये करना है, मुझे टॉप 5 में आना है, परसेंटेज मेरा इस तरह से इंप्रूव करना है, ये किताबें मुझे पढ़नी है। ये जो चीजें हैं ये सबकॉन्शियस में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स हेल्पिंग। इसलिए दोस्तों जो भी आप काम करोगे वो वहां पर इसलिए लगाओ कि बार बार आप उसे देखो और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? अब there should be a clear cut deadline for each target। डेडलाइन का मतलब ये है कि there should be a specific period, टाइम लिमिट चाहिए। क्या मीनिंग है? वेट आपको कम करना है तो वेट कम कब करना है? 6 महीने में, साल भर में? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बोलिए कि मुझे 2 महीने के अंदर वेट कम करना है, दैट्स ऑल। मुझे अगर 95% या 90% मार्क्स स्कोर करना है तो 90% मार्क्स ये साल स्कोर करना है। या फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम, किस सेमेस्टर में आपको कितने मार्क लाना है ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। और ये डेडलाइन जो है ये एक सेमेस्टर का डेडलाइन है, एक महीने का डेडलाइन रहेगा। तो फाइन, अब ये हो गया आपका, गोल्स आपके क्लियर हो गए, आपने उसे पढ़ लिए, देयर इज अ डेडलाइन। अब आपको क्या करना है? एक थोड़ा सा ये चीज जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत जरा क्रिटिकल है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा ये बताना, लेकिन आपके घर में जितने भी अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, में बताता हूं आपके अच्छे दोस्त जिनको आप अच्छे दोस्त बोलते हो। दूसरा, आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, आपका भाई,
जो भी घर में आपके है, उनको इन गोल्स के बारे में प्लीज क्लियर बताइए, प्लीज क्लियर बताइए। क्यों? इसलिए कि एक बात ध्यान में रखिए, आपने गोल बना लिए हैं, आपने लिख लिए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने भी कर लिए, लेकिन दोस्तों इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये मतलब उल्टा बताता हूं कि ये एक आदमी के लिए साल भर अपने आप को मोटिवेट रखना ये कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे, क्योंकि हमारा लाइफ जो है वो फेजेस में रहता है, कुछ 2-3 महीने आपके लाइफ के बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन कुछ महीने जो है वो डिफिकल्ट आएंगे। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड एक बात हो सकती है कि आपके जो फोकस जो है वो टारगेट पर का निकल सकता है। ऐसे समय के लिए ये मैं आपको एक मेजर बता रहा हूँ, ये बहुत सुंदर मेजर है। आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, इन सबको ये चीज बता के रखो कि मेरा ये टारगेट है, मैं मेरा वेट इस तरह से रिड्यूस करने वाली हूँ या वाला हूँ, या मुझे ये परसेंटेज चाहिए, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। दिस कुड बी योर टारगेट ऑल्सो। अब मुझे बताइए कि समझो अगर आपको 5 बजे उठना है और आपके पेरेंट को मालूम है, क्या हो जाएगा? अगर 5 बजे अलार्म होने के बाद में भी आप नहीं उठते हो तो वो क्या कहते हैं, ये सब आपके भाई बहन और पेरेंट, इन सब की जेन्युइन, ये बात मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इन सब की इच्छा है कि आपका अच्छा हो। इसलिए वो खुद आपके 5 बजे आपको टच करेगी कि चलो 5 बजे बेटा आप नहीं उठ रहे, उठ जाओ। अगर आप पढ़ाई रेगुलरली नहीं कर रहे हो, रोज आपका डिसाइड होगा कि मैं 85% मार्क्स लूंगा, उसके लिए रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। जैसे ही आपका भाई नोट करता है कि आप रोज 3 घंटे स्टडी नहीं कर रहे हो, वो आपको पॉइंट आउट करेगा कि भाई दैट इज व्हाट यू हैव डिसाइडेड। आपने ये डिसाइड किया है कि परसेंटेज मेरा 85 रहेगा और मैं दिन में 3 घंटे स्टडी करूंगा। अभी आप 3 घंटे नहीं स्टडी कर रहे हो, मेरा काम है कि आपको मैं आके बताऊं कि आप 3 घंटे नहीं कर रहे हो। क्या होगा? आपको थोड़ा सा जान पे आएगा कि कोई आके मुझे टोक रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहा है। आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके दोस्त, इनका भी काम है, वो भी वही करेंगे। आपने कहा है कि मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूंगा, दोस्तों का काम है पूछना क्या हुआ वो किताब का। रविंद्रनाथ टैगोर की वो जो किताब थी पढ़ी, रॉबिन शर्मा की अमुक अमुक किताब थी पढ़ी क्या, स्टीफन कोवी का वो जो किताब था 8th हैबिट पढ़ा, पूछिए। ऐसा नहीं चाहिए कि वो किताब के 10 पन्ने आपने पढ़ लिए उसके बाद में पढ़ाई नहीं है। आपके दोस्तों की, पेरेंट्स की और फैमिली मेंबर्स की, आपके जो गोल्स है उसमें इन्वॉल्व कीजिए उनको। जैसे ही आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, आपके साथ में वो गोल्स उनके भी बन जाते हैं, वो टारगेट उनके भी बनता है, क्योंकि आप टारगेट पूरा करें ऐसा वो भी चाहते हैं। राइट? ये एकदम क्लियर मैं आपको बताता हूँ, और इसीलिए ये बात ध्यान में रखिए। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो चीजें है, ये हमारे साल भर का आपका ये गोल है। अब ये साल भर का गोल किस तरह से करोगे दोस्तों? ऐसा बोल दिया आपने, एक सेमेस्टर का समझो आपने बोल दिया कि मुझे 85% मार्क्स चाहिए और इस तरह से मैं पढ़ाई करूंगा, या फिर आपने और जो भी आपको बताना है वो आपने बता दिया। लेकिन 1 साल का टारगेट जो है वो 1 साल का टारगेट नहीं है। आपको यू हैव टू ब्रेक दैट टारगेट इनटू पार्ट्स। ये जो पार्ट्स है 1 साल का आप 6 महीने पे नहीं, 6 महीने, जैसे कोई चीज अगर आप पूरे 12 महीने के पहले आपको 6 महीने वो चीज करना चाहिए, फिर 6 महीने के बाद में जैसे कोई चीज यूं समझ लीजिए कि आपने चेक किया कि मैं 12 किताबें पढ़ूंगा 1 साल में। अगर 12 किताबें अगर आपको 1 साल में पढ़ना है तो दैट मीन्स क्या है कि आपको 6 किताबें पहले 6 महीने में पढ़ना पड़ेगी। ये तो चलेगा नहीं कि आप पहले महीने से 10 महीने तक कोई किताब नहीं पढ़े हो और आखिरी 2 महीने में पूरी 12 किताब पढ़ने के लिए बैठ गए हो। 6 किताबें पढ़ने के लिए 6 महीने, उसको और ब्रेक डाउन कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 महीने पे आ जाओगे। इस तरह से कम करते हुए आपको 1 महीने तक आना। दैट मीन्स किताब पढ़ने के लिए, फॉर बुक रीडिंग मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक बुक आपको 1 महीने में किताब। उसी तरह स्टडीज, आपकी जिस तरह सेमिस्टर है तो सेमिस्टर में मार्क्स लेने से पहले आपकी टेस्ट होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेस्ट में मार्क्स लेना जरूरी है। अब टेस्ट आपकी कब होती है? टेस्ट आपकी 1 महीने में होती है, 2 महीने में होती है, तो नेचुरली क्या करना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से आपकी जो टारगेट्स है वो आपको कम करना पड़ेगी। और दोस्तों इसी तरह से टारगेट कम करते हुए आपको वीकली बेसिस पे आना पड़ेगा, और वीकली बेसिस पे जब आओगे तब आपको प्रेशर फील होगा
कि ये वीक में मेरा ये नहीं हुआ है, ये फोर्टनाइट में मेरा ये नहीं हुआ है। बस इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और आप डेली कुछ ना कुछ अच्छा करने लगोगे। एक बात क्लियर करके बताता हूं, जब भी आप इस तरह से अपने आप को प्रेशराइज करोगे टारगेट्स के लिए, आपको धीरे धीरे जो मैंने आपको ब्रेकअप करने के लिए बोला है वो ब्रेकअप करके आपका, पहले मैंने बोला मंथ तक आइए, फिर मंथ से फोर्टनाइट पे, फोर्टनाइट से वीकली, फिर वीकली आपको क्या करना है ये मालूम पड़ेगा। वीकली जैसे ही आपको मालूम पड़ता है आपको डेली कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। अब डेली जैसे ही काम करोगे, नहीं करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये वीक में मेरा काम नहीं हुआ है, ये डेली मेरा काम नहीं हुआ है। दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज लाइफ मैनेजमेंट। आपके दिन में आने वाला हर चीज जो है वो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने क्या क्या बोला है, ये हमारा प्रेजेंटेशन, मेक एवरीडे काम, हर चीज को अपना हिसाब दो। जैसे पहले आपका नया स्टार्ट ईयर जब स्टार्ट करते हो तो पुराने ईयर का हिसाब दो, जैसा नया दिन स्टार्ट करते हो तो एवरीडे, लास्ट डे कुछ अच्छा किया नहीं, ये आपको पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक बात बताता हूं, इस तरह के सवाल अपने आप से कोई पूछता नहीं। 95% लोग इस तरह के सवाल अपने आप को पूछते नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं पूछते कि इनके जवाब नहीं आने वाले हैं। अब इनका जवाब अगर नहीं आने वाला है तो क्यों पूछना, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि दोस्तों एक बात, यूनिवर्सल ट्रूथ आप ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को उसने जो काम नहीं किया है उस काम के लिए जब पूछा जाता है तो उसको नहीं जवाब देना बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए एवरीडे आपके दिन में, आपके लाइफ में आने वाला हर एक दिन जो है उस दिन काम कीजिए, तो वर्थ वाइल कीजिए। जैसे ही आप वर्थ वाइल करोगे नेक्स्ट डे विल बी मोर ब्यूटीफुल। पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा, आपका वीक अच्छा जाएगा। वीक अच्छा गया तो मंथ अच्छा जाता है। और जो भी हमारे टारगेट्स है, जो भी जितने भी टारगेट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं वो सब के सब टारगेट्स जो है 100% आप अकम्प्लिश कर सकते। एक बात और क्लियर करता हूं कि दोस्तों जब तक हमारा थिंकिंग इफेक्टिव नहीं होगा, आपको टीवी के बारे में बताया, मोबाइल के बारे में बताया, यूट्यूब के बारे में बताया, इसका पॉजिटिवली पॉजिटिवली यूज करना सीखिए। अपने आप अपने थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको बदलिए। जैसे ही थिंकिंग प्रोसेस बदलता है आदमी बदल जाता है। उसके बाद में एक होने वाला है, उसके बाद ही देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज every day, you will be able to make every day count in your life.